السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اما پارہ کی سیریز کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تھا، اور آج ہم سورۃ اللہب اور سورۃ النصر کو ایک ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ ویڈیوز کہ ریگولر نہیں پہنچتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ چھوٹے چھوٹے سورت ختم ہوئے تو تب تک آپ دو تین سورت ایک ساتھ ان کی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ میں پڑھاؤں گا دو تین سورت تب تک ایک ساتھ ہی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سورۃ اللہب کو۔ سورۃ اللہب یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں ٹوٹل 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ تو اب اس کو ہم ہج پڑھیں گے پہلے۔ تابا زبر تب، با کے اوپر تشدید ہے تو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے اور خود سے الگ۔ تابا زبر تب، با تا زبر بت، تبت، یا زبر یا، دال الف مد زبر دا، تبت یدا، یہاں پہ مد ہوگی۔ دیکھو مد کے 3 قسمیں ہوتے ہیں، ایک مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ مد متصل ہم اس مد کو کہتے ہیں جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں کہ حمزہ اسی ورڈ میں آئے تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو ہم 2 سے 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد مد منفصل ہو گیا۔ مد منفصل کہتے ہیں جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں آئے تو مد منفصل ہوگا۔ اس کو بھی ہم 2 سے 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس میں کسر بھی ہے، یعنی اس کو ہم 1 الف تک بھی کھینچ سکتے ہیں، یعنی کہ زیادہ بھی نہیں کھینچ سکتے ہیں، یعنی کسر ہے، چھوڑ سکتے ہو اس مد کو ہم۔ تو تیسری مد ہو گئی مد لازم۔ مد لازم کہتے ہیں جب حروف مدہ کے بعد والے حروف پر جزم یا تشدید لگی ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس والی مد کو ہم 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں، مطلب کہ کھینچتے ہیں، یعنی کہ وہ مد لازم سب سے لمبی والی مد ہم اسی کو مانتے ہیں، اس میں ہم زیادہ کھینچتے ہیں مد کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ مد متصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں آتا ہے تو مد متصل ہوگا، مد منفصل ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ دال الف مد زبر دا، یدا، حمزہ زبر ا، یدا ا، با یا زیر بی، تبت یدا ابی، لام زبر ل، ہا زبر ہ، لہ، با واو 2 زیر بیوں۔ دیکھو اس واو کو اس با کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے، اور اس کو ایک تو ہم خود الگ سے پڑھیں گے لیکن با کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے۔ با واو 2 مد زیر بیوں، لہ بیوں، واو زبر و، تا با زبر تب، اس پر بھی تشدید ہے تو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ با زبر ب، تب ب، و تب ب، لیکن جب وقف کرے گی یہاں پر، کیونکہ یہاں پر آیت آ رہی ہے تو با پر جزم ڈالے گے تو سانس توڑے گے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، میم الف مد زبر ما، حمزہ غین زبر او، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا کیونکہ مد دوسرے والے ورڈ میں آتا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ ما او
नून अलिफ ज़बर ना, मा अग़ना, आइन नून ज़बर अन। यहाँ पर हमको नून ज़ाहिर करना है, यानी कि अन ये नहीं पढ़ना है, बल्कि जल्दी अन, क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से, हुरूफ हल्की कितने होते हैं? 6 होते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, ग़ैन ख़ा। अगर तनवीन किसको बोलते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्के में से कोई हुरूफ आए तो इस नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे हम, जैसे अन ऐसे नहीं पढ़ना, ये होगा गुन्ना। ये होगा इक्फा, ऐसे भी नहीं पढ़ना है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे और इजहार करेंगे नून को। अनहु, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम पेश लु, मालु, हा उल्टा पेश हु, मालुहु। बहुत सारे यहाँ पर मालहु पढ़ते हैं, जबकि यहाँ लाम के ऊपर पेश है तो पढ़ेंगे मालुहु। वाव ज़बर व, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर स, कस, बा ज़बर ब, कसब। तो बा पर यहाँ पर अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो बा पर जज़म डालकर सांस तोड़ेंगे, जैसे कसब। देखो यहाँ पर बा पर भी कलकला होगा, क्योंकि जब हम बा पर जज़म लगाते हैं, यानी कि जो हमारे हुरूफ कलकला है वो कितने हैं? 5 है, क़ाफ़ तो बा जीम दाल। जब इन 5 हुरूफ पर जज़म आए तो इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, यानी कि इनकी आवाज़ को हम वापस लाते हैं, जैसे वतब। और कहाँ का कलकला होगा? यहाँ भी कलकला होगा। मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, वापस लानी है इसकी आवाज़ को, क्योंकि कलकला होगा। आगे सीन ज़बर स, या सौद ज़बर यस। सौद मोटा है, हुरूफ मुस्तालिया में से आ रहा है, इसलिए इसको हमने मोटा पढ़ना है। सयस, लाम खड़ा ज़बर ला, सयस ला, नून अलिफ ज़बर ना, रा अलिफ 2 ज़बर क्या हो गया? रन। लेकिन रन नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा कितने होते हैं? 15 होते हैं, उसमें से एक जाल है। हुरूफ इक्फा में से राल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इक्फा होगा। इक्फा किसको कहते हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना इक्फा कहलाता है, जैसे नारन। ठीक है, यानी कि जो हमारी टांग है वो प्लेट के साथ उसका टच भी नहीं होना चाहिए, उसको हवा में हमने रखना है। नारन, राल अलिफ ज़बर रा, नारन रा, ता ज़बर ता, नारन ज़ात, लाम ज़बर ल, हा ज़बर ह, लह। बाद देखो, अगर अब हम इन 2 हुरूफ को मिलाकर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ला बा वाव 2 ज़ेर ब्यूं, लहा ब्यूं, जैसे सयस्ला नारन ज़ात लहबिं वम्रअतु। लेकिन जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इस बा पर हम जज़म लगाएंगे, जैसे हा बा ज़बर हब, लहब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। अब इसको अगर हम अलग पढ़ेंगे कैसे? वाव मीम ज़बर वम। बहुत सारे यहाँ पर पढ़ते हैं वअम, जबकि यहाँ अलिफ जो है ये साइलेंट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई एराब नहीं लगी है, तो ये साइलेंट रहेगा। तो पढ़ेंगे वम, वाव मीम ज़बर वम, रा ज़बर रा, रा को भी मोटा पढ़ना है यहाँ पे। वम रा, हमज़ा ज़बर अ, वम रा अ, वम रा अ, ता पेश तु, वम रअतु, हा उल्टा पेश हु, वम 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 रअतुहु। अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे कैसे पढ़ेंगे? इस हा पर, यानी कि इस पर हम जज़्म लगाएंगे तो पढ़ेंगे वम रअतुह, तु हा को जाहिर करना है, इसकी आवाज़ को जाहिर करना है, वम रअतुह। लेकिन अगर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे वम रअतुहु। आगे हा मीम ज़बर हम, यहाँ पर गुन्ना होगा, क्योंकि मीम पर जब तशदीद हो तो वहाँ पर
गुन्ना, मीम और नून पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना यानी कि छुपाना गुन्ना कहलाता है। जैसे हम, मीम अलिफ ज़बर मा, हम मा, लाम ज़बर ल, हम मा ल, ता लाम ज़बर तल, हम मा लतल, हा ज़बर हा, तो ज़बर तो, हा तो, बा ज़ेर बी, हा तो बी, लेकिन वक्फ करेंगे क्या पढ़ेंगे? हातोब। यहाँ पर भी कलकला होगा क्योंकि बा पर हम जज़म लगाएंगे तो कलकला होगा। ठीक है, आवाज़ को वापस लानी है। आगे फा या ज़ेर फी, जीम या ज़ेर जी, फी जी, दाल ज़ेर दी, फी जी दी, हा अलिफ ज़बर हा, फी जी दी हा, हा बा ज़बर हब, फी जी दी हा हब। यहाँ पर भी बा के ऊपर जज़म है तो कलकला होगा। हब, लाम मीम दो पेश लुम, मीम पर तशदीद आ रहा है तो गुन्ना होगा। हब लुम, मीम ज़ेर मीम, इस नून, ये जो नून यहाँ पर साइलेंट रहेगा क्योंकि इस नून पर मीम पर तशदीद आ रही है तो इसको हमने इस मीम के साथ मिलाना है। मीम ज़ेर मीम, तो यहाँ पर दो जगह हम गुन्ना करेंगे क्योंकि एक तो इस वाले मीम पर भी तशदीद आ रही है और इस वाले मीम पर भी तशदीद आ रही है तो दोनों पर गुन्ना होगा। हबलुम मीम ज़बर म, सीन ज़बर स, दाल दो ज़ेदिन मसदिन, लेकिन वक्फ करेंगे क्या पढ़ेंगे? मसद। तो पूरी आयत को पढ़ते हैं। फी जी दीहा हबलुम मिम मसद, दाल पर भी जज़म लगा के हम सांस छोड़ेंगे तो कलकला होगा। तो फिर से रवानी पड़ेगी एक मरतबा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। अगर एक साथ पढ़ेंगे रवानी, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। इस तो को भी मोटा पढ़ना है, हुरूफ़ मुस्ताले में से आ रहा है इसलिए इसको मोटा पढ़ना है। हतब। फी जी दिहा हबलुम मिम मसद। तो ये हो गया सूरतुल लहब। अब हम पढ़ेंगे सूरतुन नसर को। सूरतुन नसर ये मदनी सूरत है, यानी कि ये मदीना पाक में नाजिल हुई है और इसकी टोटल 3 आयत है और 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर